mental health, smiles, and workplace. Secondly, when you talk about job or you talk about society, कुछ smiles real होती हैं और कुछ fake होती हैं. absolutely. And I feel like this is one of them कि a lot of people smile through life. इसमें जैसे कि मई का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का महीना है, सो इसमें बहुत सी जगहों पे अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए. If you cry at work, your reputation will be damaged. Oh, completely true. I would like you to add some perspective on that. Ki how have you been, implementing mental health strategies in ClearPath? They have asked like counselor, and they hired a female psychologist, and that psychologist was so professional. Hello and welcome everyone to the third episode of the Smile Lounge. Today we are going to be talking about something different. We are not going to be talking about dentists. We are not going to talk about science behind the smile, but we are going to be talking about a very important issue that I think everyone is aware of, but there are a lot of stigma around it, and also a lot of people don't talk about it very openly. Today we will be discussing mental health, smiles, and workplace. I know this is a very frowned upon topic, and a lot of people don't talk about these things. But I think this is very important that in today's world we do think about this and talk about why mental health in the workplace is very crucial and necessary, and this needs to be talked about more. To join me on this topic, we have a very special guest with us. We have Sir Faisal Wahab, who has been the Senior Director of Human Resources at ClearPath Orthodontics, and he's been working there for the past 8 years, as well as he's also worked at esteemed companies like Jazz. He is also associated with Franklin Covey, organization dedicated to training and development. He has been conducting workshops, and the specific workshop he has been conducting over there is 7 Habits of Highly Effective People. So the reason he is here sitting with us is so that he could actually spread that knowledge that he has gained over many years in his career, to actually educate people on how they can, or other human resource people, on how they can actually identify the mental health issues that go around in the workplace, and how even employees can focus on these issues and maybe speak about them, or maybe HR people can improve their workplaces. So without any further ado, we're gonna start our topic for today. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you very much for having me. How do you feel to be a part of this podcast? Very excited. Actually, I think that this is one of the very fundamental topics which needs to be discussed in our workplaces, in our society as a whole, because of the fact that mental health has been received so less of the attention that it should have been given. So I think I'm pretty excited to answer your questions and to create a sort of awareness amongst people about this topic. Okay, that's great. And we are excited to have you as well. And I know your opinion is going to be very special for a lot of viewers as well. And I feel like there would be a lot of new and fresh opinion on such topics, because personally I feel like कि लोग ज़्यादा इस बारे में बात करते नहीं हैं. While हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वर्क प्लेस के अंदर ज़्यादातर इट्स जस्ट हसल हसल हसल, और यूजली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो हसल के पीछे जो थोड़ा सा एक बर्नआउट का स्ट्रगल होता है, एंड देन ऑल्सो द फैक्ट दैट हाउ you are not in Pakistani society specifically, how we're not even allowed to display mental health issues, because it's considered such a bad thing. Yeah, it's a taboo. And secondly, when you talk about job or you talk about society, so let me ask you a question. What do people want out of work, out of society, and out of friends? Exactly, you think, what is the end result of all this? What people want? If we talk about mental health and how people
what people want regarding whenever they're doing something. I feel like most of the times people, if I ask people randomly this question, everyone would be like, मुझे सुकून चाहिए. Absolutely. You have hit the nail on the head. It is peace of mind. Yes. So people are after peace of mind. Now money, job, everything is it basically produces that peace of mind. So peace of mind is the outcome of something. Yes. It's not in and itself. So when you talk about job, when you talk about different things that we do, we all want peace of mind. So try and understand that our brain is like a hardware and your mind is a software. So there's a difference. So when you talk about mental health problems, there is so much stigma attached to it. Definitely. कोई बंदा जो है ना हमारी सोसाइटी में इस पे बात नहीं करना चाहता. इसमें जैसे कि मई का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का महीना है, सो इसमें बहुत सी जगहों पे अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पेरेंट्स. यार पेरेंट्स को नहीं पता कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं मेरा बेटा जवान है, हट्टा कट्टा है, इसको प्रॉब्लम कैसे हो सकता है. सो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती. ऐसा ही है. इट्स नॉट कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट. अच्छा, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि यार ये अच्छा खासा बंदा है, ये खाता पीता घराने का है, के पास दौलत है, सब कुछ है, और क्या है? यार डिप्रेशन, और क्या ही चाहिए होगा. क्या चाहिए होगा, ऐसा ही है. वाई इज डिप्रेस्ड. बट द थिंग इज कि जिस तरह से हमारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, हम किसी को ये क्यों नहीं कहते यार तुम तो इतने अमीर आदमी हो, तुम्हें बुखार क्यों हो गया. ऐसा ही है. हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि यार तुम्हें स्किन एलर्जी क्यों हो गई है, तुम तो बड़े माशाल्लाह हंसते गिरते रहते हो. बिकॉज वो किसी कह गए कि पागल हो गए हो भाई, मुझे फिजिकल एलिमेंट हुई है. लेकिन मेंटल एलिमेंट जब बात आती है तो बहुत डिनायल मोड आता है. मैं स्टार्ट विद द पेरेंट्स बाय द वे. देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स, मैं खुद जानता हूँ कि फैमिलीज को जिनके बच्चे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे एंड दे वेंट टू साइकियाट्रिस्ट विदाउट टेलिंग देयर पेरेंट्स. I can totally vouch for that because I myself have studied psychology. So I know personally because I have been working with a lot of psychologists. So I know कि a lot of people जो psychologist के पास जाते हैं वो अपने families को नहीं बताते because especially boys. Exactly. Especially boys. Women are then again more open and vocal about this. But बॉयज का भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि बॉयज के बारे में हमेशा से कहा जाता है यार क्या हो गया, मर्द बन मर्द. अब कोई बंदा अगर डिप्रेस है या डाउन है, कैसी बातें कर रहा है, यू आर एक्टिंग लाइक अ वुमन, यू आर एक्टिंग लाइक यार फॉर गॉड सेक दिस इज टैबू. इवन किसी को ये कहना है टैबू है कि यार आपकी लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो या ये क्यों कर रही हो. सो मर्दों को शुरू से बताया जाता है बॉयज डोंट क्राई, यू नॉट सपोज्ड टू क्राई. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. पहले पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि हमारे मसाइल हैं क्या. देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है साइकियाट्रिस्ट आपको मिलते ही नहीं है. गेस करें कि 230 मिलियन पॉपुलेशन में कितने आपको अवेलेबल है साइकियाट्रिस्ट, गेस करें. I used to know this answer but मुझे भूल गया. I think around मुझे जहाँ तक लगता है, it's a ballpark figure. I think it's like around 2,000, 3,000. No, it's 700 to 900 qualified psychiatrists in Pakistan. Oh. अच्छा, साइकोलॉजिस्ट हमारे कितने अवेलेबल हैं? Only 3,000. अच्छा, जितनी ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर ये साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल ही हैं तो ये कहाँ पे अवेलेबल है? सिर्फ अर्बन सेंटर्स पे. Yes. अर्बन सेंटर से मुराद ये है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी जैसे जो शहर हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है. इसके अलावा अवेलेबल नहीं है. गाँव देहातों में तो खैर बात ही ना करें, वहाँ तो इसको समझते ही नहीं है कि किसी को मेंटल इलनेस. Exactly. अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान में अराउंड 1000 साइकियाट्रिस्ट हैव मूव्ड अब्रॉड. Abroad, yes. तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ब्रेन ड्रेन है. अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्यों साइकियाट्रिस्ट इतने कम हैं. इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं. एक तो ये कि इसको इतना कोवेटेड प्रोफेशन नहीं समझा जाता. दूसरा ये कि इसमें इतनी फंडिंग अवेलेबल नहीं है. इसको आप ये समझिए कि इट्स द मोस्ट निगलेक्टेड एरिया. Yes. तो इस पे तवज्जो दी नहीं जाती. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10,000 पॉपुलेशन को एक साइकियाट्रिस्ट मिलना ज़रूरी है. Yes. हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो 2.5 से 3 लाख लोगों को भी एक मुश्किल से मिलता है. ऐसे ही है. Speaking about work culture, basically, you have been working as a human resource professional for many years, and I feel like you would have a lot of experience that how people feel at a workplace, and
ऑब्वियसली आपके सामने से बहुत सारे इश्यूज भी गुजरे होंगे लोगों के, विच कुड बी सम वुड बी लाइक वेरी पेनफुल एज वेल, कुछ लोगों बड़े पर्सनल इश्यूज भी होते हैं. बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि सबसे ज़्यादा स्टिग्मास ऐसे क्या है वर्क प्लेस के अंदर रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ. सो बेसिकली व्हाट पीपल थिंक दैट वर्क प्लेस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते. एज एन एग्जाम्पल आई हैव कि कुछ लोग एक्चुअली डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, बर्नआउट फील कर रहे होते हैं, बट वो ऑफिस में बीमार हो के कहते हैं कि अनसिक मिलनी चाहिए. वो कि फिजिकल एलिमेंट का बहाना कर देंगे, बट दे विल नेवर टेल कि यार आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड और आई एम फीलिंग नॉट रियली अप टू द मार्क. अच्छा, इसमें इशू ये है कि लोग अगर कोई मेंटल हेल्थ से गुजर भी रहे होते हैं तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी फिजिकल एलिमेंट में. अगर डिप्रेशन का आपको फील हो रहा है कि आई एम डिप्रेस या कोई सिम्टम फील हो रहा है तो वो उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे. उसमें टैबू यही है कि किसी को पता लग गया कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो कहीं मुझे वो मेरी वैल्यूएशन ना ख़राब कर दे या मुझे ये ना समझे कि ये वीक है. एक तो ये बड़ा मसला है. हम लोग समझते हैं कि जो बंदा मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाता है, उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो वीक है या ये वो कोप नहीं कर सकता लाइफ में, वो कमज़ोर है, वो किसी तरह उस पर कोई वीकनेस है, कोई कमी है. मानूर मैं आपको बताऊं कि क्लिनिकल डिप्रेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी लीथल. क्लिनिकल डिप्रेशन में आपको इस किस्म के ख्यालात आते हैं कि आई शुड टेक माई ओन लाइफ, और इंसान इतना सफ़र कर रहा होता है. किसी को खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है तो किसी ना किसी हद तक आप उसके सिम्टम को देख लेती हो कि यार उसका माथा गर्म है. इसको मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है कि वो बंदा अंदर ही अंदर सफ़र कर रहा होता है और बज़ाहिर वो हंस रहा होगा, बट ही इज सफरिंग. जो आपने वर्क प्लेस की बात की, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस और वो कहते हैं जी हमारे लाइन मैनेजर की वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो गया है. अब देखो प्रॉब्लम क्या है मानूर, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो. जो लाइन मैनेजर होता है ना, उसके पास एक स्टैट्स है कि मैंने ये काम करवाना है. लेकिन अगर वो शख्स हर रोज़ बैठ के अपने एम्प्लॉइज़ को ये कहेगा ये स्टैट हमने निकल बताए थे, याद हुई है, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए किसी भी मैनेजर को कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है. साइमन सिनेक इस बहुत बड़ा राइटर है, स्पीकर है. उसने कहा था कि देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. ईदर यू टेल दैट पर्सन योर नंबर्स आर डाउन, आई थिंक यू नीड अ वार्निंग लेटर, आई थिंक आई नीड टू लेट यू गो. दिस इज वन वे. बट देयर इज अनदर वे आल्सो कि आप उसको कहिए योर नंबर्स आर डाउन, इज एवरीथिंग ऑलराइट विद यू, आर यू ओके, is everything fine at your home? Now from this angle you will start from perspective ही चाहिए. Exactly, you will start with the position of empathy. Yeah. और empathy वो चीज़ है जो बहुत important है for mental health and for longevity of life also. Yeah. I want you to focus more on the fact that how, especially Pakistan के अंदर, how workplaces actually neglect mental health, especially on a bigger scale. So स्मॉलर लेवल के ऊपर तो लोग शायद बात करते हो मेंटल हेल्थ के बारे में, लाइक टीम्स आपस में या समथिंग लाइक दैट, बट ऑन अ बिगर स्केल वो भी ओपनली नहीं होता. बट व्हाट डू यू थिंक के व्हाई डू पाकिस्तानी वर्क प्लेसेस एंड लाइक लैग ऑन दिस इशू, स्पेसिफिक इशू? हालांकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं वर्क प्लेस के अंदर, they all know about these issues. Obviously we have social media, we have all of that, but I still feel like all of that information, एक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कहीं से, उसके बावजूद आई फील लाइक a lot of people, a lot of companies lag behind these issues. Is it deliberately? Do you think actually they don't care about this lack of empathy? Like, what do you think that is the major issue? I'll tell you one thing. The company that I worked for, Jazz, they have a employee counselor and they hired a female psychologist, and that psychologist was so professional कि उसने कभी किसी एम्प्लॉय की बात मैनेजमेंट को नहीं बताई. उसके बाद मैनेजर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लोअर रैंक, वो भी आते थे और उनसे बातचीत करते थे. और कई बातें ऐसी होती हैं मानूर जो आप HR से भी नहीं करना चाहते. So फिर you need someone, you need a counselor, और ये हम अपनी कंपनी में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि there should be a counselor available. कोई भी एम्प्लॉय किसी पे जाके वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो किससे बात करे. तो at times you feel कि you need someone who should listen to you. और अगर हम इसको इस तरह से देखें कि even someone says कि yes I understand you and I totally agree with you and I know what you are saying, यही उसके लिए बड़ा सवाल बनता है. ज़रूरत इस बात की है कि हर कंपनी जो है
वो अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस दे कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इट्स ऑल राइट। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम किसी को है, सिक लीव ले रहा है, दैट इज फाइन। आई मीन इट्स ऑल राइट। जैसी माइंड कहीं और तो नहीं है ना, आपकी बॉडी के अंदर फिट है, ऐसे तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाई वी शुड नेगेट इट एंड व्हाई वी शुड ट्राई टू कवर इट। ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। सो बेसिकली अभी हमने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादातर स्ट्रेस को शो नहीं करवाते ऑफिस स्पेसेस के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, और उसी इससे रिलेटेड मेरा आपका क्वेश्चन है कि व्हाई डू पीपल बेसिकली मास्क स्ट्रेस, के स्ट्रेस शो करना इज़ नॉट नाइस, और फिर उसको मास्क करते हैं कि जस्ट बीइंग ओके, स्माइलिंग। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि कुछ स्माइल्स रियल होती हैं और कुछ फेक होती हैं, Absolutely. एंड आई फील लाइक कि दिस इज़ वन ऑफ देम कि अ लॉट ऑफ पीपल स्माइल थ्रू लाइफ, स्माइल थ्रू देयर वर्क डे। तो आई फील लाइक कि आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एज वेल कि व्हाई इज दैट पीपल in the workplace mask stress with smiles. If you show stress तो आप शायद प्रमोट नहीं होगे, आपको वीक समझेंगे, और इफ़ यू जस्ट स्माइल थ्रू द पेन तो आपको शायद प्रमोशन भी मिल जाए जो आपको चाहिए, आपका मैनेजर भी आपसे खुश हो जाए, और स्ट्रेस शो करोगे तो आप थोड़े वो एक लाइबिलिटी लगोगे। अगेन वही बात है जो आपने खुद ही आंसर कर दिया कि इसको साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है। इट्स नॉट साइन ऑफ वीकनेस, इट्स बीइंग ह्यूमन। If you are stressed, it's just that you are a human being and any human being can get stressed, right? Yes. So इसको एक तो sign of weakness कतई नहीं समझना चाहिए। Secondly, when someone comes to you, हमारे HR में काफ़ी लोग आते हैं, and one person came to me and he said कि सर मुझे डिप्रेशन है। मैंने कहा बेटा आपको किसने कहा है कि आपको डिप्रेशन है? उन्होंने कहा जी मैं एक हकीम साहब के पास गया था, उन्होंने कहा आपको डिप्रेशन है। मैंने कहा देखो हकीम इज़ नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन टू डिसाइड कि आपको डिप्रेशन है। आप एक साइकेट्रिस्ट से रब्ता करो, वो एवेलुएट करेगा, एंड इफ यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन तो वो आपको मेडिसिन देगा। अच्छा, एक और मानूर बड़ा स्टिग्मा है हमारे माशरे में, दवाई नहीं खानी। मैं दवा नहीं खाऊंगा। भाई क्यों दवा नहीं खाओगे? तुम्हें जब बुखार होता है, जुकाम होता है, खुदा न खास्ता आपको कोई फिजिकल एलिमेंट होती है, तो आप डॉक्टर से कहते हो कि मुझे इंजेक्शन लगा दो, हम ऑपरेट भी कराते हैं। मगर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम कहते हैं कि मैंने ये दवा नहीं खानी, क्योंकि मैं दवा खाऊंगा तो शायद मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं मेंटली इल हूँ, और चूँकि मैं मेंटली इल हूँ और ये एक टैबू है, इसलिए आई डोंट वांट टू बी मेंटली इल। तो उस टैबू की वजह से लोग जो हैं वो कहीं दवा नहीं खाते। बिकॉज आई नो डिस्टेंट फैमिली मेम्बर, एक हुआ था प्रॉब्लम, उसको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, वो दवा नहीं खाता, वो कहता है मैं ठीक हूँ, ये डॉक्टर पागल है। अच्छा, वो डॉक्टर को पागल समझता, कहते हैं डॉक्टर पागल है, आई एम फाइन। सो ये इतना बड़ा टैबू बना दिया गया है हमारे माशरे में कि इसको तो हमारा जो इस मंथ का थीम है वो है टर्न अवेयरनेस इनटू एक्शन। यस। सो हमारा जो पहला जो काम है अभी तो वही नहीं हो रहा, हम अवेयरनेस करेंगे फिर वो एक्शन को लेंगे ना। तो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अवेयरनेस अमंग सोसाइटी। एक और चीज़ जो मानूर हमारी सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो समझनी चाहिए स्पेशली हस्बैंड्स को, women go through a lot of problems. उनके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मेल्स में नहीं होती इतनी। उन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से दे सफ़र थ्रू लॉट ऑफ एंजाइटी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसर्स। सो हस्बैंड्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मे बी शी सफरिंग थ्रू दैट फेज, और उसमें मोर एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो हमारी सोसाइटी में जिसको अभी तक लोग नहीं समझ सके, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है। एक खातून जो है डिलीवरी के बाद उसको डिप्रेशन का फेज आता है बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस इन आवर बॉडी। उसको समझने की ज़रूरत है, स्पेशली जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, जिनकी हो गई हैं, कि यार वो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसको समझिए, और उसमें आपका रवैया होना चाहिए बड़ा एम्पैथेटिक, रादर देन कि आप उससे लड़ाई शुरू कर दें। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस हैपन राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बिकॉज वो जो आपका रिलेशन है इट इज जम्बल्ड अप राइट आफ्टर दैट। खातून को समझ नहीं आ रही होती कि मैं कोप कैसे करूँ उन प्रेशर से। Definitely, and even women who are working as well, उनकी organizations को भी need to keep this in mind कि if women are coming from a maternity leave, they might be suffering from
postpartum depression. Absolutely. And even for men sometimes, like after having a child, men are also stressed most of the times because काफी कुछ चल रहा होता है उनकी life के अंदर भी. So I feel like the element of people's personal life should also be considered by a workplace in general. Absolutely. So I feel like this is a good point that you raised, that how women in the workplace also need that kind of treatment, not especially in home, also in the workplace, कि जहाँ पे वो चीज़ understand की जाए for women. Absolutely. And same goes for men as well. So Acha, on that topic, I also want to ask you, so we were talking about how a lot of things happen, myths in the workplace, and how कुछ चीज़ें real है, कुछ नहीं होती है. So I have a question for you, and उसके बाद we would be playing a game. So yes, It's a brave game. ये क्या है? So the question is, what is one myth about mental health at work that you wish every manager would unlearn today? अच्छा, मैं मिथ में नहीं कहूँगा, वो एक फैक्ट है. वो फैक्ट ये है कि एवरी मैनेजर शुड अंडरस्टैंड दैट हिज और हर बिहेवियर इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ माय रिपोर्टीज. दैट इज समथिंग एवरी मैनेजर, लाइन मैनेजर जिनको कोई लोग रिपोर्ट करते हैं, उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरा बिहेवियर मेरे एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालता है. मेरा इंटरेक्शन, क्योंकि लाइन मैनेजर का मोस्टली इंटरेक्शन डेली होता है, तो मेरी जो उनके साथ कन्वर्सेशंस हैं दे शुड बी पॉजिटिव, और मुझे उनको ये फील कराना है कि यू कैन डू इट, रादर देन कि तुमसे ये नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें क्या ख्याल है, तुम्हें मैं एक लेटर दिलवा दूँ, क्या ख्याल है मैं तुम्हें HR भेज दूँ. यार ये ओल्ड फिलॉसफी, वही बच्चों वाली चीज़, प्रिंसिपल के कपड़े में भेज मैं देखे ना, वो दैट मीन्स कि वो मैनेजर अभी भी उस प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर नहीं आया. एग्जैक्टली. वो फिर आई थिंक वही आपकी वाली बात कनेक्ट हो जाती है कि ये चीज़ें पहले घर से स्टार्ट होती हैं, और फिर स्कूल में भी वही सारा कुछ हो रहा होता है कि प्रिंसिपल का ऑफिस भेजोगा, और फिर जब वो उस पोजीशन में आते हैं तो फिर वो भी उसी तरह वो एक्ट करना स्टार्ट करते हैं. पावर डायनामिक बन जाता है. कि जो बच्चे होते हैं ना, वो फिर बड़े बच्चे बन जाते हैं. ऐसे ही जब वो स्कूल कॉलेज में होते हैं तो वो बच्चे होते हैं, जब वो कॉर्पोरेशन में आते हैं तो वो बड़े बच्चे बन जाते हैं. Okay, so Sir Faisal, we'll be playing a game with you, and this game is called Real or Fake. So I will be giving you some scenarios, workplace scenarios, and you will tell me कि if they are actually true, कि ये होता है, or are they fake, कि ये नहीं होता workplace में, because you have had a lot of experience in different workplaces, so I'm pretty sure कि you can tell कि कौन सा real और कौन सा fake है. Taking a day off for stress or anxiety isn't acceptable unless you say you're sick. Oh yes. If you cry at work, your reputation will be damaged. Oh, completely true. Managers who are emotionally open can't command respect. No, managers who are open actually command respect. It's fake. The best employees are the ones who smile and never complain. No, not at all. You can't be smiling all the time. You can't be happy all the time. But is that true कि अगर एक बंदा स्माइल ज़्यादा करता है, खुश रहता है 24/7, अपने मसले नहीं बताता, तो वो ज़्यादा लाइकेबल होता है अपने उसमें अथॉरिटी. ये समझता है ना कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही सॉल्व करता है, खुद ही लेके आता है सोल्यूशन. हैप्पी को लकी को तो हर कोई पसंद करता है, बिकॉज मैनेजर्स इवन डोंट वांट कि वो प्रॉब्लम लेके आए और फिर मुझे डंप करे और फिर मुझे सॉल्व करना. तो इस वजह से वो थोड़ा सा ईज समझता है ऐसे बंद से डील करने की. सो इट्स जस्ट ईज ऑफ वर्किंग. HR is there to protect the company, not to support you as an employee. Is that real or fake? अच्छा देखो, इसमें मैं ना रियल कहूँगा ना फेक कहूँगा, बिकॉज इट हैपन्स इन लॉट ऑफ कंपनीज, इट हैपन्स टू फ्यू कंपनीज. ये डिपेंड करता है कि आपका क्या एक्सपोजर है. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी. सो देखिए, ऐसा नहीं है कि HR हमेशा फेवर करता है अपनी मैनेजमेंट की. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. दे हैव टू बैलेंस इट आउट. और if I am concerned, at least I give a lot of feedback to the management कि देखिए हमें इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए. तो ऐसा नहीं. ठीक है. Okay, another statement, mental health leaves will ruin your appraisal. I think it's fake because ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका जो है वो अप्रेजल रुइन करे. अगर किसी कंपनी में आपका अप्रेजल इसलिए रुइन हो रहा है कि यू हैव हैड मेंटल हेल्थ इशू,
तो that company is definitely not well aware about the mental health problems. Smiling is seen as a strength, showing stress is a weakness. ये हमारी सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा डिलेमा है, रियल है कि स्माइलिंग इज सीन एज परसीव्ड एज टू बी स्ट्रेंथ एंड complaining and whining and being stressed is seen as negative. ये एक कॉमन एक मतलब हमारा एक वो है, लेकिन दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. ऐसा नहीं है कि कोई स्माइल कर रहा है तो हम कहें जी कि वो बंदा जो है वाह वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, हर बात में स्माइल करता है. आई मीन लेट्स बी रियल. Moving on to our next questions. So, we are going to be talking about smiles. Okay. Workplace में smiles. Since the podcast name is also the Smile Lounge, so we need to discuss more about कि जो smile के पीछे एक psychology होती है, और क्योंकि smiling एक बहुत it's a huge thing. You know, when you're smiling, it does help you get your mood good as well. Psychologically भी कहते हैं if you're fake smiling, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है. Also sometimes, like you already discussed, that people might be suffering through depression, but they might be having a happy face. Oh yes. So emotional mask की हम यहाँ पे बात करेंगे in the workplace. Do you think that smiling at work is sometimes used to avoid being labeled as difficult or unprofessional? Yeah. A lot of people mask it and a lot of people portray as if they are very happy, but actually they are faking. So inside they are sulking, they may be suffering, or they may be fighting against their internal demons. But the thing is कि end of the day, it's a fake smile. So अगर आपका मैं क्वेश्चन इस तरह समझूं कि is it okay to feel this way? No, it actually damages you. क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, आप अंदर ही अंदर सल्किंग कर रहे हैं और आप स्माइल एक फेक बना के तो लोगों को दिखा रहे हैं कि नहीं आई एम ओके. No, you're not okay, and it's okay to be not okay. This is very important. Definitely. It's okay to be not okay. We can't be all the time smiling, and we're not supposed to smile all the time. Definitely. On that note, I would ask you that as an HR professional, and you've also been working with people very closely. So, can you tell if someone is smiling कि उनकी smile में भी कुछ छुपा रही है, या फिर there may be stressed, और maybe शायद वो burned out है? How ऐसे क्या क्यूजन से आपको ऐसे पता चलता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो सफ़र कर रहा है एक्चुअली, बट वो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है? ओके, तो ये तो एक बिल्कुल अलग सा टॉपिक है, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग. फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज टेल यू अ लॉट अबाउट अ पर्सन. Yes, as an HR person, I can actually decipher between a fake smile and a genuine smile. और मुझे ये नज़र आ रहा होता है कि ये शख्स कह ये रहा है, लेकिन इसके अंदर जो फीलिंग है कुछ और है. सो बिकॉज बॉडी लैंग्वेज जो है वो सारा भी बताती है, तो ये एक बड़ा कंप्लीट सब्जेक्ट है. बट येस, अगर आपका सवाल ये है कि एज एच प्रोफेशनल कैन यू डिसाइफर, येस आई कैन. Definitely, and I feel like with your experience, you can definitely look into that as well. So, following up on that question, आपकी भी बात कर लेते हैं कि what do you do in certain scenarios इस तरह के, तो आपको ऐसे फील हो जाए कि कोई एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली स्माइल तो कर रहा है, बट he or she is masking behind something, maybe they're feeling stressed, तो आप as an HR person आप क्या करते हैं, what would you suggest other people to do in the same position as you? So the best idea is that you talk to that person one on one. आप सबके सामने बात ना करें, आप उसको अलहदगी में ले जाएं. I mostly take the person to boardroom 1-to-1 और उसमें कहता हूँ यार देखो ये सेफ जोन है, जो बात होगी आपने मेरे से करनी है, खुल के बताओ इशू क्या है, और आपने ऐसा माहौल पैदा करना है कि वो बंदा आपको अपना मसला बताए. तो देखो यार मैं जो बात होगी इस कमरे में रहेगी, सो टेल मी व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग. और मोस्टली हम कि जो HR से लोग जब आते हैं तो मोस्टली ओपन बात करते हैं. वो कहते हैं सर आई नो कि आप मेरे लाइन मैनेजर को बता दें कि देखो यार तुम्हारे लाइन मैनेजर को ये पता भी नहीं चलना कि तुम मेरे पास आए हो, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेल मी बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम. तो ये हमें कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है, उन्हें ये तसल्ली देनी होती है कि आपका जो भी मसला है वो इट विल स्टे विद दीज वर्ड्स. Okay, that's really great, and I feel like a lot of people should, especially HR professionals in the workplace, should adapt such practices in their offices as well. ये safe space बनाना बहुत important है for employees, because obviously वो एक मैं ये चीज़ सोचती होती हूँ कि मैं किसी भी वर्क प्लेस पे जाती हूँ या फिर कहीं पे भी, लाइक इफ़ आई हेयर अबाउट किसी और के एक्सपीरियंसेस, तो आई फील लाइक
कि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती. Absolutely. आई टोटली एग्री विद दिस कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाओ. मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई थी ये सोच के, ओ माय गॉड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ पे भी इश्यूज होते हैं. स्कूल्स में भी आपके इश्यूज होते हैं. कोई ना कोई इशू आपका हर जगह कहीं ना कहीं होता है. पर्सनली ना हो, बिगर लेवल पे भी होता है, कभी कुछ भी हो सकता है. तो नो प्लेस इज परफेक्ट, बट आई फील लाइक इट्स द पीपल हु मेक द प्लेस बेटर. सो ऑब्वियसली जब मास के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा सारे लोग होते हैं, तो फिर कहीं ना कोई इश्यूज आ जाते हैं. You see, perfection is an illusion. यस. No, nothing is perfect. Yeah. So हमें perfection को chase नहीं करना. हमें we try to make things better. यस. That's what we get. And I feel like every day people should, go to work and think, okay, मेरा office जैसा भी है, I have a safe space there. So if anything ever happens, so I can, go to talk to the HR, maybe whatever counselor they have or anything. तो at least वो एक safety employee को feel, वो हो तो that would be like nice. And I feel like कि आपने already answer कर दिया अपने question में कि you already do that, and I feel like that's really nice. Yeah. Following up on that, and I feel like कि obviously because you've worked for so many years in this position, तो आपने काफ़ी सारी younger and older लोगों के साथ काम किया होगा. तो what do you think कि ये जो masking your stress और ये masking your emotional condition, ये आई फील लाइक कि यंगर पॉपुलेशंस आजकल बहुत ज़्यादा ओपन है इस चीज़ के बारे में. जैसा जेन जी है वो बहुत ओपन होती है. दे लाइक मैं ट्रिगर्ड हूँ, आई एम ट्रिगर्ड, मुझे ट्रिगर कर दिया इसने. तो वो बहुत ओपन होते हैं इस चीज़ के बारे में एज़ कम्पेयर टू मिलेनियल्स या फिर बूमर्स जो होते हैं. वो बिल्कुल वो कहते हैं ठीक है मिस कराओ, हम ठीक है. बट जेन जी थोड़े ज़्यादा ओपन है. So I think one of the very good points about Gen Z is that they are more aware about mental health. They talk about it. मैं उस दिन बेटे से बात कर रहा था मेंटल हेल्थ के बारे में, तो ही गेव मी सो मेनी एग्जांपल्स एंड सो मेनी थिंग्स ही न्यू अबाउट इट. सो जेन जी का ये है कि दे आर मोर वेर अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड दे आल्सो आर मोर एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं. वो एक्सप्रेस करना जानते हैं और वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोई स्ट्रेसर हो या कोई ट्रिगर हो. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अबाउट देम. और जो बाकी जनरेशन्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, काफ़ी हद तक वो भी समझते हैं. जो जेन एक्स है जिसमें से कि जब मैं आता हूँ, हमारी पॉपुलेशन में जो तो लोग थोड़े वेल अवेयर थे वो तो समझते थे इस चीज़ को. बाकी वही कहते थे यार मेंटल हेल्थ क्या होती है यार, डिप्रेशन क्या होता है, और तुम्हें किस चीज़ का डिप्रेशन है. ऑल्सो अब मुझे नहीं पता कि मैंने कब सुनी थी लाइन, बट काफ़ी साल पहले इन माई वर्क एक्सपीरियंस मैंने किसी से सुना कि नौकर की तो नखरा की. तो आई वांटेड यू टू टॉक अबाउट दिस इज वेल कि एज अ जॉब जब पर्सन आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो वो लोग उसको कंसिडर करते हैं नौकरी कर रहा, नौकर की थी नखरा की. तो क्योंकि नखरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम ऐसे ही होता है, वर्क प्लेस ऐसी होती है, सहना पड़ता है सारा कुछ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. अगर हम कहें ना कि हर चीज़ आपको सहनी है, तो फिर तो आप कह रहे हो कि मेंटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करो. जैसे भी है काम करो, जो कहते हैं टेक इट और लीव इट. नहीं, हमें इस कल्चर से बाहर आना है. हमें ये नहीं कहना कि नौकरी की और नखरा की, हमें कहना कि नौकर भी इंसान है और नखरा कर सकता है कभी कभी, तो इसके नखरे को बर्दाश्त करना पड़ता है. नहीं, दैट्स डेफिनेटली अ ग्रेट पर्सपेक्टिव ऑन दैट. अच्छा, वी हैव अनदर गेम फॉर यू एंड ये थोड़ी सी डिफरेंट यूनिक गेम है. इसका नाम है मीम इट. सो हम थोड़ा सा अपनी जेनजी आवाम को भी टारगेट करेंगे इस गेम के थ्रू. सो आई रियली वुड वांट यू टू शेयर योर पर्सपेक्टिव ऑन इट एज वेल कि हाउ वुड यू मीम इट. तो मैं आपके सामने कुछ कार्ड्स रखूंगी जो कि मीम्स होंगे एंड मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगी और आपने उसके ऊपर रिएक्शंस देने हैं उन मीम्स के बेसिस. सो यू हैड बैक टू बैक जूम कॉल्स, स्माइल्ड थ्रू ऑल ऑफ देम, रिपीटेड द सेम लाइन्स लाइक आई वाज ऑन autopilot. So it would feel like this. I would agree. Okay. I had a rough start, but powered through. Small wins and team shout out made it better. Something like that. Amazing. I told my manager I was burned out. She smiled and said, "Same here," and then gave me more work. Smarty, Kiki. Huh? Okay. My boss said we're a mental health friendly workplace 2 minutes before asking who could work the weekend. What? Seriously? I mean,
Got praised for my great attitude after turning in work finished at 3 a.m. through tears. So that was fun to play that game. Yeah, it was really fun. I'm glad you enjoyed it. So, moving forward, कि किस तरह की practices करनी चाहिए कंपनी को, especially HR professionals को, to actually identify these issues and actually do something regarding this specific matter. एक तो मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये हम अपनी कंपनी में इंशाल्लाह करेंगे, वो ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन होने चाहिए Definite. कि हम सब एम्प्लॉयज को बताएं कि मेंटल हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। दूसरी चीज ये है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट टॉलरेबल, उनको हमें कंप्लीटली नो की लिस्ट में डालना है कि दिस इज व्हाट अ मैनेजर कैन नॉट डू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो फॉर एग्जांपल, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट थ्रेटन समवन विद जॉब, you cannot tell someone कि I will fire you if you don't do this, you cannot tell someone that I will give you warning letter if you don't do this. Threatening is a complete no go area, वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। So I think कुछ लिमिट्स हमें डिफाइन करनी होंगी और हमें बताना होगा कि यार आपके जो रवैया है, जो आपका बिहेवियर है, वो मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रहा है अगले बंदे की। सो इस पर काफ़ी काम होना है। मानूर हमारे मुल्क में बताया कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है, तो इसको हमें फुलफिल करना है। And I feel like one person who takes responsibility for something will actually drive more people towards it. So अगर एक कंपनी से स्टार्ट होता है तो फिर और कंपनीज भी, अब जिस तरह like you mentioned कि Jazz has a counselor, so you have that in mind and you're also trying to implement it in this office, which is a great initiative. So and I feel like कि इसी तरीके से फिर आगे आपसे जो लोग सीखेंगे वो आगे different companies के अंदर वो चीज़ जो है वो foster करेगी. And I feel like कि we need to be advocates for mental health everywhere and we need to be more empathetic and kind towards everyone every day. And I feel like कि जब भी हम काम पे आते हैं and sometimes एक टॉपिक के ऊपर I want to shed some light on it कि sometimes people often say कि ऑफिस में दोस्त नहीं बनाने चाहिए। हाँ, वो बहुत मशहूर मिथ्स हैं। एक मिथ ये भी है कि ऑफिस में कोई आपका फ्रेंड नहीं होता। यस। अच्छा होता मानूर ये है कि कुछ केसेस में ये ट्रू भी है। कुछ केसेस में लोग अपेरेंटली बड़े फ्रेंड्स होते हैं मगर पता लगता है कि वही शख्स जो आपके साथ बैठ रहा है वही आपकी जड़ें काट रहा है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपटीशन होता है, इसलिए जनरली कहते हैं कि नहीं होता दोस्त आपका, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पास बहुत अच्छे दोस्त आपके कॉर्पोरेशन में बनते भी हैं। ऐसे ही है। तो फिर ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट। बट डू यू थिंक ये जो एक डायनामिक क्रिएट होता है विद इन टीम्स के कोई एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं होता उस तरीके से, डू यू थिंक कि दैट कम्स फ्रॉम एन अपर मैनेजमेंट थिंग कि एक कंपटीशन क्रिएट किया जाता है फॉर पीपल टू बी दैट वे? तो अब फॉर इंस्टेंस अगर प्रमोशन है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए हैव टू कम्पीट विद ईच अदर रादर देन नॉट हेल्पिंग ईच अदर। और इसीलिए कि ये चीज़ थोड़ी सी शायद थोड़ा स्टिग्मा भी है सोसाइटी के अंदर इन जनरल कि किसी खुद आगे बढ़ने, दूसरों को नहीं अपने साथ आगे लेके जाना, खुद आगे बढ़ना है। तो एक तो ये भी चीज़ होती है। आई फील लाइक ये तो वैसे इन जनरल हमारी सोसाइटी का वो थोड़ा सा होता है। एंड डू यू थिंक, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि डू यू थिंक कि ऑल्सो के अपर जो मैनेजमेंट होती है या फिर ये जो प्रमोशंस और या अप्रेजल्स के अंदर जो भी सिस्टम्स यूज होते हैं, हाँ, जो भी प्रोसेस होता है उस चीज़ का, इट हैज़ समथिंग टू डू विद दिस एज वेल कि लोग आपस में इतने फ्रेंडली नहीं होते ऑफिस के अंदर। वो एक दूसरे को लाइक दे आर मोस्टली एनवियस और मे बी दे ट्राई टू लेग पुलिंग बहुत करते हैं। वो समझते हैं एक दूसरे को कंपटीशन। देखो अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना वहाँ पे ये डिलेमा आता है। लेकिन आपको पता है कई कंपनीज ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ख़त्म ही कर दिया है। उनकी जो वैल्यूएशन हो रही होती है वो साथ साथ हो रही होती है। ओके, तो वो दे डोंट गो फॉर एनुअल इंक्रीमेंट्स और समथिंग लाइक दैट। उनका एक डिफरेंट स्टाइल होता है, वो अप्रेजल होता है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होता है। सो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट डज क्रिएट कंपटीशन अमंग्स पीपल और वो समटाइम्स अनहेल्दी भी हो जाता है ऐसे ही। और उसमें मैनेजर को, जो स्पेशली लाइन मैनेजर्स हैं, उनको ख्याल ये रखना चाहिए कि वो बिल्कुल मेरिट पे बात करें और फेवरेट्स प्ले ना करें। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने क्लियर पाथ की बात स्टार्ट की है तो आई वुड वांट यू टू ऐड सम पर्सपेक्टिव ऑन
ClearPath as well. Working at ClearPath, and also we are also from ClearPath. This podcast is from ClearPath as well. So I would like you to add some perspective on that. How have you been, implementing mental health strategies in ClearPath, and what do you think that you can improve more and you're working towards? सो कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने लोगों के मेंटल पीस ऑफ माइंड की हमेशा कहता हूँ पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक तो पीस ऑफ माइंड के लिए हमने ये किया कि लोगों को आते ही जब मैं आया था तो शाबाश मेडल स्टार्ट किए थे। शाबाश कार्ड देना या शाबाश मेडल देना लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू मेडल, उसका मकसद ये था कि कोई भी आपका परफॉर्मर है उसको आप कैश रिवॉर्ड भी दें और उसको आप अप्रिशिएट भी करें और उसकी पिक्चर भी आप लगाएं। तो दैट वाज वन ऑफ द वेज कि अप्रिसिएशन कल्चर को इम्प्रूव करना। एक तो ये हमने किया। एक हमने आई थिंक पॉलिसी लेके आए हैं जो बहुत पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी है। वो ये है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई ऑन द जॉब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 5 साल तक कंपनी सैलरी देती रहती है, ताकि उसकी जो घर में मसाइल हैं, इट्स वेरी ट्रामेटिक फॉर समवन को ये सोचे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे फैमिली का क्या होगा। लेकिन अगर उसको ये पता है कि मैं चला भी जाऊंगा तो मेरे पीछे फैमिली को 5 साल तक सैलरी मिलती रहेगी, ये बहुत बड़ा उसके लिए एक क्वांटम ऑफ सलैस है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग जो बहुत हमारा एक कल्चर है ClearPath को, इसको लोग थोड़ा नेगेटिव भी लेते हैं लेकिन ये पॉजिटिव भी है। एनी पर्सन राइट फ्रॉम ऑफिस बॉय टू अ क्लीनर, he or she can go to CEO directly। अब इसको कई लोग कहते हैं यार ये तो हायरार्की ब्रेक करना है, ये क्या बात है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। एटलीस्ट हम ये समझते हैं कि हमारा जो टॉप मैन है उसने अपने दरवाजे लोगों के लिए खुले छोड़े हुए हैं। Definitely, that is very positive, and I'm glad that you realize that these are actual issues in the workplace, and you are actually doing something to improve those for the employers that work for you and work in this company. And definitely, I feel like moving forward in the coming years, more things will improve because as a person, because as also an HR director and also as an advocate for mental health, and I feel like you have a lot of knowledge in this area, in this field, and I feel like your knowledge is also reflecting in your work. So we look at you every day and we see you working, so I can vouch for that you are working towards the betterment of the company, and ClearPath itself is working towards employee benefit. So obviously मैं उसी पॉइंट पे वापस जाऊंगी अपने कि कोई जगह परफेक्ट नहीं होती। Everyone's trying to make a place better, and obviously everyone needs to collaborate. देखिए, चैलेंजेस हर कंपनी में होते हैं, Definitely. बट हमने मिलकर उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। Yes. सो एंड हमारा रिजल्ट ये है कि ना सिर्फ हमने ClearPath को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, बल्कि हम चाहते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको फॉलो करें। Yes, definitely, and I agree with that. And so I would conclude this segment by saying that ClearPath doesn't focus just on making perfect smiles. It also focuses on making their employees smile internally and externally. So concluding this, I had a lot of fun talking about mental health with you, and I feel like you gave me a lot of new perspective on this issue itself, and I feel like a lot of people who will be watching this podcast would also gain more ideas and perspective on how they can improve mental health in the workplace and even in their personal lives, because a lot of people may not realize कि उनके साथ कोई मसला चल रहा है, but maybe sometimes किसी के बता देने से उनको शायद एकदम से realize हो जाए कि oh, maybe I am going through something. So Sir Faisal, would you like to say something to our audience as a concluding statement? Okay, so I hope that this podcast was useful for you guys. Remember, if you or anyone else, आपके इर्द गिर्द कोई शख्स है जिसको आप समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इशू है, वेट ना करें, प्लीज़ उसको लाजमी किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वांट इन पाकिस्तान, अवेयरनेस अराउंड मेंटल हेल्थ।
I hope you guys enjoyed this session. And this session is really close to my heart as well, because I feel like there is a lot of things that we need to discuss openly about mental health, especially even in the workplace, even outside. And I feel like Sir Faisal has given us a lot to think about today. And I feel like all of these ideas could be implemented in our daily lives as well as our workplaces. So we will be concluding this podcast, and I hope you have fun watching this, and we'll see you in the next episode. Thank you so much for watching this, and Allah Hafiz.